सो हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं क्लास सेवेंथ का। यस। तो आज हम करने वाले हैं क्लास सेवेंथ का साइंस। तो ये हमारा साइंस का सबसे फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। आप प्रमोट हो चुके हैं क्लास सेवेंथ में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास सेवेंथ का फर्स्ट चैप्टर साइंस का, न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। One nutrition in plants. One point one mode of nutrition in plants. Utilization by the body. The mode of in class 6 you learnt that food is essential for all living organisms. You also learnt that carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are components of food. These components of food are called nutrients and are necessary for our body. All living organisms require food. Plants can synthesize food for themselves, but animals, including humans, cannot. They get it from plants or animals that eat plants. Thus, humans and animals are directly or indirectly dependent on plants. 1.1 Mode of nutrition in plants. Plants are the only organisms that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide, and minerals. The raw materials are present in their surroundings. The nutrients enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged parts of their bodies, and provide the energy to carry out life processes. Nutrition is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body. The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substances is called autotrophic. Auto equals self, trophos equals nourishment, nutrition. Therefore, plants are called autotrophs. Animals and most other organisms take in food prepared by plants. They are called heterotrophs. Heteros equals other. Buja wants to know how plants prepare their own food. Now we may ask where the food factories of plants are located, whether food is made in all parts of a plant or only in certain parts. How do plants obtain the raw materials from the surroundings? How do they transport them to the food factories of plants? 1.2 Photosynthesis, food-making process in plants. Leaves are the food factories of plants. Therefore, all the raw materials must reach the leaf. Water and minerals present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves. Carbon dioxide from air is taken in. Haley wants to know why our body cannot make food from carbon dioxide, water, and minerals like plants do. Rationalized 2023 to 24. 2 Science. Haley wants to know what is so special about the leaves that they can synthesize food but other parts of the plant cannot. Cells. Through the tiny pores present on the surface of leaves. These pores are surrounded by guard cells. Such pores are called stomata, figure 1.2c. Water and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like pipes throughout the root, the stem, the branches and the leaves. They form a continuous path or passage for the nutrients to reach the leaf. They are called vessels. You will learn more about transport of materials in plants in Chapter 7.
Leaves have a green pigment called chlorophyll. It helps leaves to capture the energy of the sunlight. This energy is used to synthesize, prepare food from carbon dioxide and water. Since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis, photo, light, synthesis, to combine. So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide, and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. It is a unique process on the Earth. The solar energy is captured by the leaves and stored in the plant in the form of food. Thus, sun is the ultimate source of energy for all living organisms. Can you imagine life on Earth in the absence of photosynthesis? In the absence of photosynthesis, there would not be any food. The survival of almost all living organisms directly or indirectly depends upon the food made by the plants. Besides, oxygen, which is essential for the survival. You have seen that buildings are made of bricks. Similarly, the bodies of living organisms are made of tiny units called cells. Cells can be seen only under the microscope. Some organisms are made of only one cell. The cell is enclosed by a thin outer boundary, called the cell membrane. Most cells have a distinct, centrally located spherical structure called the nucleus, figure 1.1. The nucleus is surrounded by a jelly-like substance called cytoplasm. Cell membrane. Cytoplasm. Nucleus. Figure 1.1 cell. Bujo wants to know how water and minerals absorbed by roots reach the leaves. Rationalized 2023-24. Nutrition in plants 3. Besides leaves, photosynthesis also takes place in other green parts of the plant, in green stems and green branches. The desert plants have scale, or spine-like leaves to reduce loss of water by transpiration. These plants have green stems which carry out photosynthesis. Of all organisms is produced during photosynthesis. In the absence of photosynthesis, life would be impossible on the Earth. During photosynthesis, chlorophyll-containing cells of leaves, figure 1.2, in the presence of sunlight, use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates, figure 1.3. The process can be represented in an equation. During the process, oxygen is released. The presence of starch in leaves indicates the occurrence of photosynthesis. Starch is also a carbohydrate. Sunlight, chlorophyll, carbon dioxide, water, carbohydrate, oxygen. Bujo has observed some plants with deep red, violet, or brown leaves. He wants to know whether these leaves also carry out photosynthesis. Activity 1.1. Take 2 potted plants of the same kind. Keep one in the dark, or in a black box. Figure 1.2 for 72 hours and the other in sunlight. A. Leaf. Guard cells. C. Stomatal opening. B. Section of a leaf. Figure 1.3 diagram showing photosynthesis. Light energy. Carbon dioxide. Oxygen, chlorophyll and leaf. Water and minerals. Guard cell stoma. Chlorophyll. Rationalized 2023-24. सो स्टूडेंट्स, अब हम ये क्लास यहीं पे एंड करेंगे. आगे का क्लास हम पार्ट 2 में करेंगे. ओके, we will continue our next class, next part in part 2. ओके, जिसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे किसके बारे में, एक्टिविटी 1.1 के बारे में. मैं समझ रही हूँ कि आपको अच्छे समझ में नहीं आया है, सॉरी, बट मेरी थोड़ी कोडिंग गड़बड़ हो गई थी, आई एम सो सॉरी.
बट अभी भी उतनी गड़बड़ नहीं हुई थी जिसमें आपको समझना है। वो एकदम अच्छे से समझा रहा था। तो जस्ट मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी करूँगी अभी। तो फिर एक्सप्लेन करने के बाद हम अपनी क्लास एंड करेंगे। तो पहले एक्सप्लेनेशन से स्टार्ट करते हैं। हम करेंगे कहाँ से? मैं आपको पहले सारे डायग्राम, जैसे ये डायग्राम है, ये डायग्राम है। 7th क्लास में डायग्राम्स बहुत बहुत सारे मिलते हैं। साइंस में कलरफुल्स बहुत डायग्राम मिलते हैं। तो स्टडी अच्छे से हो जाती है, समझ में आ जाता है। ओके, वरना पहले इतना कलरफुल नहीं होता था। साइंस की बहुत बहुत पहले की बात कर रही हूँ, तो तब उतना कलरफुल नहीं रहता था। बट अब आपके पास कलरफुल सी बुक है, क्योंकि अब आपके पास मैथ्स की बुक है। आप देख सकते हो उसमें कि कैसा कलर है उसका, है ना? बस दैट्स वाई। तो अब हमारा चैप्टर 1 का एक्सप्लेनेशन करते हैं। हम इम्पोर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करेंगे। ओके, सो इन क्लास 6 यू हैव लर्नड ओके learned that carbohydrates, fats, carbohydrates, proteins, fats, vitamin, and minerals are components of food. आपका एक चैप्टर था, चैप्टर 2 था वो आपका 6th क्लास में, जिसमें आपको कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में पढ़ाया गया था। अगर आपको याद होगा उसमें आपको बताया गया था कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। इन सब चीज़ों के बारे में आपको इस चैप्टर में बताया गया था। ठीक है, दिस कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स आर कॉल्ड न्यूट्रिशंस। अब ये जो कंपोनेंट है, ये जो कंपोनेंट किसको बोलते हैं? किन्हीं चीज़ों का मेल, किन्हीं 4 चीज़ों का, 5 चीज़ों का, मतलब कितनी भी चीज़ों का मेल। अब देखो यहाँ पे कितने कितने हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, मिनरल है। तो आपके कितने हो गए? 1 2 3 4 5। यहाँ पे आपको 5 चीज़ों के बारे में, न्यूट्रिशंस के बारे में बताया जा रहा है। तो अब इन सबको एक साथ अगर हम ले तो बोलेंगे न्यूट्रिशंस, तो उनको न्यूट्रिशन कहेंगे। इन सब के मेल को न्यूट्रिशंस कहेंगे हम लोग। आप डॉक्टर बीमार पड़ते हो, ओके, मान लो पेट दर्द का इशू है, ओके, तो आपका स्टमक पेन का इशू है, आप डॉक्टर के पास जाओगे। डॉक्टर आपको क्या बोलेंगे? डॉक्टर आपको ये बोलेंगे कि आप अपने बच्चों को बाहर का मत खिलाइए, क्योंकि वो न्यूट्रिशंस उसमें कम रहते हैं। आप घर का न्यूट्रिशंस वाला खाना खिलाइए। अब देखिए, मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं? मिनरल्स हमें पानी से मिलता है। ठीक है, मिनरल्स नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा? जब आप बाहर का खाओगे, मान लो आप पानी पूरी वगैरह खा रहे हो, ठीक है, तो उसमें जो पानी होता है वो पानी मिनरल वाला है, बिना मिनरल वाला है, कहाँ का पानी है वो नहीं पता। होटल में खा रहे हो, होटल में आपको खाना खाने के बाद प्यास लगी तो आप उधर से वाटर लोगे, वो उसमें मिनरल है नहीं है उसका नहीं पता हमें। तो इसलिए आपका स्टमक पेन का इशू हो सकता है ना, इन्फेक्शंस हो सकती हैं। ओके, फैट में भी आप बाहर का खा रहे हो, तेल है, घी है। अब मान लो कि वो तेल घी उसमें 5 दिन पहले तला उन्होंने समोसा, ठीक है, 5 दिन पहले समोसा तला हो, फिर आज भी उसी में तल दिया उन्होंने, वो फिर खराब हो जाएगा ना। वो फैट अच्छा नहीं हुआ, वो गंदा फैट हो गया। ठीक है, यूज्ड फैट हो गया, वो पहले से ही वो तेल हो रखा था, यूज्ड था, और फिर उसको 5 दिन बाद तब भी उसको यूज़ कर रहे नहीं होता इससे। हाँ, और प्रोटीन वाली चीज़ें उसमें कम रहती है, सब्जियाँ, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब बहुत कम रहता है उसमें। हाँ, ज़्यादातर ऐसे नूडल्स, मैदे वाली चीज़ें ज़्यादा होती हैं। नूडल्स, मैगी में वैसे नूडल्स ही होता है, सॉरी, नूडल्स होता है, पास्ता होती है, मैक्रोनी होती है। तो ऐसे वो सब मैदे से बनी होती है, ठीक है, तो वो सब अच्छी नहीं होती है हमारी बॉडी के लिए।
ठीक है। तो इसलिए इन सब चीज़ों को न्यूट्रिशन से बोला जाता है, क्योंकि अच्छी चीज़ होती हैं जो आप घर पे लेते हो, और वो सब चीज़ें गंदी चीज़ होती है। आप न्यूट्रिशंस नहीं लोगे तो वो चीज़ें जो मैंने बताई वो चीज़ गंदी चीज़ हो गई। न्यूट्रिशंस में आप ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, मतलब आप पहले का पुराना तेल नहीं पियोगे, और या फिर प्रोटीन में सब्जियां खाओगे, मिनरल में गंदा पानी नहीं पियोगे, हाँ, साफ पानी पियोगे, ऐसा होता है। अच्छा, मैं 1 मिनट में आती हूँ। यस। सो हाँ, हम कहाँ थे, न्यूट्रिशंस पे। तो हमारे आप सबको अभी ये न्यूट्रिशंस वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा, एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडीज। हाँ, तो न्यूट्रिशंस आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडीज। ठीक है, आपके जो शरीर होता है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अच्छा इंटेक करो, अच्छे न्यूट्रिशंस खाओ, अपनी हेल्थ को हमेशा अच्छा रखो। ये आपके बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। तभी आप फिजिकल एक्टिविटी करोगे, आपका माइंड ग्रोथ होगा। हाँ, आप अच्छा खाना खाओगे, अच्छे से सोओगे, अच्छा अच्छा काम करोगे, तो आपकी पढ़ाई में भी अच्छा मन लगेगा, अच्छे से करोगे आप पढ़ाई, टॉप करोगे आप अपने क्लास में, टॉपर बनोगे। हाँ, सो ऐसा, जैसे हर एक चीज़, खाना, सोना, ये सब भी इम्पोर्टेंट है। अब कुछ बच्चे सोते नहीं हैं, तो वो सुबह जल्दी नहीं हो पाते, जिनसे जो वो क्लास में जाते तो ऐसे उनको नींद आ रही होती है, वो बार बार सो रहे होते हैं क्लास में, ध्यान नहीं लगता उनका क्लास में, तो इस वजह से। the mode of nutrition the mode of nutrition which एक सेकेंड, सॉरी मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रही, सॉरी, organisms. The mode of nutrition which organisms make food themselves and simplify the substance is called, um, फिर से मेरी टंग ट्विस्ट हो रही है, ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक। ठीक है। सो ऑटोट्रॉपिक किसको बोलते हैं, एक सर मैं इसको दूसरे कलर से हाईलाइट कर दूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ऑटोट्रॉपिक, ओके। ऑटोट्रॉपिक्स इज इक्वल टू का साइन, मतलब उसको कोई सॉल्व नहीं करना, ठीक है। इज या फिर इज इक्वल टू, उसका मीनिंग होता है, ऑटोट्रॉपिक मीन सेल्फ, ठीक है, हमारा, ठीक है, हमारा। ट्रॉपिक मीन्स नरिशमेंट, ठीक है। ट्रॉपिक मीन नरिशमेंट। नरिशमेंट मतलब आपको नरिशमेंट करता हो ना, आपने सुना होगा ऐड वगैरह में, ऑयल के ऐड वगैरह में, कि आप अपने बालों को नरिश करो आलमंड से, है ना। सो आलमंड बेसिकली आपका बादाम होता है, ओके। सो आलमंड से नरिशमेंट होती है क्योंकि उसमें आलमंड में ऑयल की सब्सटेंसेस होते हैं, उसके ऑयल निकल सकते हैं, उसके ऑयल निकलते हैं, दैट्स उसमें नरिशमेंट होता है, ठीक है, उसमें प्रोटीन होता है, ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक मीन्स ऑटो यानी सेल्फ, ट्रॉपिक मतलब नरिशमेंट, ठीक है। आप यहाँ यहाँ से भी समझ सकते हो, इस वाले पोर्शन से भी, कि ये क्या क्या चाहता है। मैं आपको इस वाले पोर्शन से एक बार समझा दूँ। तो ये बोल रहा है द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशंस इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्फ, ठीक है। तो अब वो मोड की बात की जा रही है, जो न्यूट्रिशंस, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना फूड, अपना खाना खुद से बनाते हैं, और सिंप्लीफाई द सब्सटेंस इज
कॉल्ड ऑटोट्रोपिक। और वो अपने खाने को सब्सटेंस बोल रहे हो, खाने को सिंप्लीफाई करते हैं। मतलब जैसे हमें बोला जाता है ना, तो हमें बोला जाता है कि आपको फूड इनटेक करना है, तो फिर इनटेक करने से पहले यानी गले से नीचे उतारने से पहले आपको मुंह में माउथ में अपने बाइट करना है। कितने बार बाइट करने के लिए बोलते हैं, कितने बार च्यू करने के लिए बोलते हैं? वो च्यू करने के लिए बोलते हैं ओनली 22 टाइम्स। अगर कोई बच्चा 22 टाइम्स से ज़्यादा कर रहा है, दैट्स गुड। ओके, क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है बच्चों को कि वो पिज़्ज़ा खाते हैं, देन अगले दिन स्कूल आते हैं, देन उनका स्टमक पे पेन होता है। तो जस्ट हमारी क्लास में एक बच्ची थी, उसका स्टमक पेन हो रहा था। मैंने बोला क्या खाया था तुमने कल परसों? तो उसने जस्ट बोला मैंने कल रात में पिज़्ज़ा खाया था। ठीक है, तो मैंने बोला अच्छा पिज़्ज़ा खाया था तभी हो रहा है। हाँ, अब फिर मैंने उसको बोला कि अगर आप अब वैसे तो अभी घर जाओ, मेडिसिन लो, बट अगली बार आपकी पिज़्ज़ा खाओगे तो 32 टाइम्स या 34 टाइम्स से चबाना, और या फिर 30 टाइम्स भी चबाओगे ना, 22 नहीं, 30 टाइम्स चबाना पिज़्ज़ा को। तो जस्ट उसने बोला ओके मैम, अगली बार से मैं 30 टाइम्स चबाऊंगी। ठीक है, एंड जस्ट वो बाइट कर रही थी, काउंट कर रही थी कि मैंने कितने बार च्यू किया। वो बाइट कर रही थी, फिर काउंट कर रही थी मैंने कितने बार च्यू किया। एंड उसने पूरा पिज़्ज़ा जब ख़त्म कर लिया, उसके बाद उसका स्टमक पेन नहीं हुआ। ओके, और वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो एक्चुअली डॉक्टर के पास भी गए थे, तो उसने मुझे बताया कि डॉक्टर बोल रहे थे कि वो आपके पेट में ऐसे पिज़्ज़ा का जो चीज़ होता है वो इधर उधर लग जाता है, फंस जाता है, वो तो दर्द पेन होता है, फिर पेन होता है, मेडिसिन खाने से वो ठीक हो जाता है। तो तब उसने बोला कि मुझे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने 30 टाइम्स च्यू किया, और 30 टाइम च्यू करने से जो चीज़ था वो भी अच्छे से मिक्स हो गया, उसमें पूरा सिंप्लीफाई हो गया, वो पूरा सिंप्लीफाई हो गया। तो इस वजह से मेरा स्टमक पेन नहीं हुआ। तो आप देख सकते हो 22 टाइम्स, आप अगर आपने 22 टाइम्स न्यूट्रिशंस वाली चीज़ को खाया तो कुछ नहीं होता, वो अच्छे से इंटेक हो जाता है, अच्छा से हो जाता है, वो अंदर चला जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। बट वहीं आप चीज़ को खा रहे हो तो उसका देखा स्टमक पेन होने लग गया। और ये मेरा भी बचपन में ऐसा ही होता था। तो मैं पिज़्ज़ा खाते टाइम या फिर कुछ भी अगर गलत वलत, वैसे मैं खाती नहीं थी, हर 1 मंथ में एक बार मिलता था हमें। तो आपको भी 1 मंथ में 1 टाइम काफ़ी है आपके लिए। और ये अगर आपके टीचर अलाउ कर रहे हैं 1 मंथ में एक बार अपने टिफ़िन में लाने का तो दैट्स गुड, और नहीं कर रहे तो वो तो बेस्ट है एकदम। ओके, तो हम अपने टॉपिक पे वापस चलते हैं। तो हमने ये समझ लिया ऑटो, फिर से मैं टंग ट्विस्ट हो रहा। हाँ, ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक, ऑटो मतलब हमारा, ट्रॉपिक मतलब नरिशमेंट। ओके, तो nutritions they nutritions therefore plants are called autotropic। ठीक है, एक सेकंड, लेट मी क्लीन द स्पेस। देन मैं इसको कौन सा क्लास से करूँ? ग्रीन, ग्रीन कर देती चलो। ठीक है, टू पिंक। हाँ, so therefore plants are called ऑटोट्रॉपिक, इसलिए क्योंकि वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। जैसे प्लांट्स खाना बनाते हैं ना, मतलब उनका फूड क्या होता है, वो फूड देते हैं हमें, जस्ट लाइक बनाना, पाइन एप्पल छोड़ो, आप टोमेटोज मांग लो, या वो ब्रिंजल मान लो, ओके कुछ भी, कोई भी सब्जी मान लो, या कोई स्ट्रॉबेरी मान लो, कोई भी, हर एक प्लांट हमें, बहुत सारे प्लांट बहुत सारे वेजिटेबल्स देते हैं, फ्रूट्स देते हैं। ठीक है, तो वो सब जो होते हैं वो उनकी जो प्रोसेस होता है वो जिससे वो बनाते हैं वो खुद का, जैसे हम अपना खाना खाते हैं ना, सब्जी रोटी दाल चावल, जो प्रोवाइड करता है सब्जी वगैरह, कौन? प्लांट्स प्रोवाइड करता है। तो प्लांट्स को भी तो चाहिए होगा ना खाना अपना, प्लांट्स भी तो खाना खाएंगे ना, तभी तो फिर वो हमें खाना दे पाएंगे। सो तो जब वो खाना खाते हैं तो उनका जो खाना होता है वो, उसको ऑटोट्रॉपिक्स कहा जाता है, क्योंकि वो अपने खाने को जो मिट्टी, सनलाइट एंड
कार्बन डाइऑक्साइड उनका जो ये सब का मेल होता है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड को और वगैरह की चीज़ों को सिंप्लीफाई करते हैं अच्छे से उसको, जैसे हम च्यू करते हैं वैसे वो सिंप्लीफाई करते हैं, देन वो इनटेक करते हैं, अपने रूट्स तक पहुंचाते हैं ताकि उनका और नरिशमेंट हो उनमें, और वो अच्छे से बड़े अच्छे से हो और नरिशमेंट हो उनका, मेनली उनका उससे नरिशमेंट हो। ओके, और वो खुद से करता है इसलिए ऑटोट्रॉपिक कहा जाता है। ऑटोट्रॉपिक का मतलब नरिशमेंट होता है इसलिए। तो ये क्लियर हो गया होगा अब आप लोग को। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। ओके, लेट मी चेंज दिस इनटू ब्लू। Animals and most other organisms take in food prepared by plants. They are called फिर से मेरी टंग ट्विस्ट हो रही है, हेटरोट्रॉपिक। ठीक है, हेटरोट्रॉपिक। ठीक है, तो मैं इसको हाईलाइट कर लेती हूँ। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड prepared by plants. They are called heterotropics. ठीक है, मैं इसको अच्छे से हाईलाइट कर देती हूँ पर्पल से। हेटरोट्रॉपिक्स। तो हेटरोट्रॉपिक्स क्या होता है? हेटरोट्रॉपिक्स हेट्रो सॉरी हेट्रो हेट्रो कहाँ तक आते हैं? HETERO, हेट्रो। ठीक है, यहाँ पे हेट्रोस लिखा है इन्होंने, बट हेट्रो ऐसे हेट्रोट्रॉपिक है, बट वो हेट्रोस उन्होंने दिया है। हेट्रो मतलब हेट्रोस मतलब आपका ऑर्डर होता है, इसका मतलब होता है ऑर्डर। ऑर्डर मतलब हेटरोट्रॉपिक। ट्रॉपिक का मतलब हम यहाँ पे समझ चुके हैं, ट्रॉपिक मीन नरिशमेंट। ओके, तो ट्रॉपिक का मतलब होता है नरिशमेंट, और फिर से टंग ट्विस्ट हो रही है। हाँ, हेट्रो। हेट्रो मतलब होता है अदर, अदर और ट्रॉपिक। करो करो, तो आपका मीनिंग क्या बनेगा? हमारा नरिशमेंट और अदर, तो मतलब हो गया आपका कि वो जो हेट्रो मतलब किसी और से बनाया हुआ खाना। सिंपल ऐसे मानो तो किसी और का बनाया फूड, अगर मैं ऐसे मानूं तो। ठीक है, जैसे हमने देखा ऑटो मतलब खुद से बनाया हुआ खाना फूड हो गया, तो वैसे अदर अदर किसी और से बनाया हुआ फूड। तो एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म that take in food prepared by plant, they are called heterotropic। अच्छा, एनिमल्स क्या होते हैं? एनिमल्स भी हमारे जैसे होते हैं, ह्यूमंस जैसे होते हैं। ह्यूमंस एनिमल्स इन दोनों को ऑर्गेनिजम्स ऐसे माना जाता है। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स में आपका एनिमल्स में अगर आप देखोगे लॉयन, एंट, लॉयन और एंट ये भी ऑर्गेनिजम्स में ही आते हैं। एनिमल्स में मेनली डोमेस्टिक और उस सब को नहीं देखते, एनिमल्स में ही आ जाएंगे कि ऑर्गेनिजम्स में, कि एंट भी अपना खाना खुद से नहीं बनाती, वो शुगर केन से जब शुगर बनता है वो भी खाती है, या फिर कोई भी मीठी चीज़ खाती है जो चीनी से बनता है या गुड़ से बनता है, जो हमें प्लांट से मिलता है, शुगर केन से मिलता है। तो कैसे उसने अपना खाना नहीं बनाया, उसने अपना खाना किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाया, प्लांट ने बनाया। ठीक है, प्लांट खाना बनाती है और एनिमल्स और ह्यूमंस को खाते हैं। तो हम खुद से बना के नहीं खाते। अब तो आप बोलोगे कि मम्मा मार्केट से सब्जी लाती है, बैंगन लाती है, या फिर आप पोटैटो बोलो, पोटैटो लाती है और फिर बनाती है, देन मैं पोटैटो की सब्जी खाती हूँ। तो वो जो फूड है वो आप मेरी मम्मा ने बनाया नहीं, वो पोटैटो कहाँ से आया? ठीक है, पोटैटो के साथ ओनियन कहाँ से आया? उसमें ओनियन भी होगा, तो ओनियन कहाँ से आया? ओनियन आपने तो नहीं बनाया, ना ही पोटैटो बनाया। ठीक है, वो तो आपके प्लांट ने बनाया है ना। तो इसलिए वो हेटरोट्रॉपिक हो गया, दूसरों से बनाया हुआ खाना। हम प्लांट का बनाया हुआ खाते हैं, हम हेटरोट्रॉपिक खाते हैं। ठीक है, ये साइंटिफिक कुछ नेम होते हैं। अब टीवी का भी कुछ साइंटिफिक नेम होता है साइंस में। ओके, और बहुत सारी चीज़ें होती है जिनका साइंटिफिक नेम होता है साइंस में। तो साइंस में फूड का साइंटिफिक नेम हो गया मान लो हेटरोट्रॉपिक। ठीक है, और फिर सॉरी हेटरोट्रॉपिक,
और फिर ऑटोट्रॉपिक हो गया आपका। हाँ, ऑटोट्रॉपिक हो गया आपका, है ना। ऐसे तो आप बोल सकते हो ना प्लांट्स का बनाया हुआ खाना, ऐसा भी तो बोल सकते हैं, बट ये अच्छा थोड़ा लगा। ऑटोट्रॉपिक अच्छा लगता है। साइंस में अलग अलग चीज़ों के नाम हमें बताया जाता है। अगर आप अभी आगे बढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा, उनके नाम बताए जाएंगे, अलग अलग साइंटिफिक नेम्स। ठीक है। नाउ अब मैं ज़्यादा लंबी वीडियो हो रही है, तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन, नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन मतलब अभी मैं यहाँ तक ही करवा देती हूँ। बाकी का एक्सप्लेनेशन मैं इसका स्टार्ट करूँगी सेल्स से। मैं बाकी सेल्स से पढ़ाऊँगी आपको, आगे का मैं आपको सेल्स से पढ़ाऊँगी। ओके, उसके बाद फिर ये कुछ चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को पढ़ाऊँगी, एंड कुछ ये प्लांट्स के फिगर्स के बारे में। ठीक है, तो हम अपनी वीडियो का एंड अब यहीं पे कर देते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट में, हम पार्ट 2 में इसका आगे का देखेंगे इसका। ओके, सो so thanks thanks for watching. So thank you for watching. If you like this video, please like like fine, like and subscribe my channel. Thanks for watching. If you like my channel, please subscribe, please. इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है आपके लिए और बताने का, आपको चीज़ों के बारे में, साइंस के बारे में, इंग्लिश में, मैथ्स में और सब्जेक्ट्स में। ओके, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप और मोटिवेट कीजिए मुझे, जिससे मैं आपको और ऐसी वीडियो अच्छी अच्छी प्रोवाइड कर सकूँ। अगर आपको मेरा ये नॉलेज अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम मिलेंगे पार्ट 2 में साइंस के। सो बाय।